So welcome to our online classes. Myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 7. Okay, you all have to prepare your notes in proper language because when school will be reopened, then your exam should be taken on the basis of these notes. Okay, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, उसी को हम लोग पहले समझेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, दैट व्हाट इज नेचुरल नंबर. All counting numbers are called natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. dot dot. Okay. Now whole number. Then what is the meaning of whole? Whole means complete. WHOLE. Whole means complete. When zero is added in the group of natural number, then whole numbers are formed. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. This is the group of whole number. Then why whole numbers are called whole numbers? Because 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमने 9 तक लिखा. जब हम उससे आगे गए तो हमारे पास काउंटिंग्स के प्रॉब्लम होने लगे. तो जब जीरो को हमने ऐड किया तो इन जीरो की सहायता से हमारा नंबर कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया. और जीरो हमारे नंबर सिस्टम का सेंटर पॉइंट होता है, जिसके राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम लोग निगेटिव नंबर्स को लिखते हैं. So we can say 0 is the base of number system. Okay. Whole numbers, it means that all natural numbers are also called whole numbers, because whole numbers is 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. And we know that 1, 2, 3, 4, 5, etc. are natural number. Therefore all natural numbers are whole number, but all whole number is not natural number, because 0 is whole number but this is not a natural number. Now what is integers? Okay, all natural numbers 0 and negative countings are called integers. Okay, 0, 1, 2, 3, -1, -2, this is integer. Okay. अच्छा, हमने यहाँ पे देखा कि 1, 2, 3 नेचुरल नंबर है जो कि इंटीजर में आ रहा है. इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर. 0 भी आ रहा है, इट मीन्स ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर. बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, नॉट होल नंबर. ओके, integers may be negative, may be 0 and may be positive, may be negative, may be 0, may be positive. Okay, this is important. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. अब हम चैप्टर पे चलते हैं. वी हैव टू इवेल्युएट. इवेल्युएट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एंड वी हैव टू फाइंड आंसर. फर्स्टली वी शुड नो अबाउट बोर्ड-मास रूल. फर्स्टली वी शुड नो अबाउट बोर्ड-मास रूल. BODMAS. B for bracket, O for off, D for divide, M for multiply, A for add and S for subtract. ओके, हम इस बोर्ड मास रूल को फॉलो करके इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ टाइप ऑफ मल्टीप्लाई, अगेन डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट. हियर 15 प्लस -8, then 15 plus -8. Firstly we have to solve bracket, then 15 plus -8 is equal to 7. This is the answer. Okay, firstly we have to solve bracket and we know that plus is equal to plus, minus is equal to plus. Okay, but it is important that during multiply, look here, if we multiply -6 into -6, then our result will be 36, because minus plus. But if we add -6 -9, minus plus, here -15, but our result will be minus. Why? Because here 9 is greater. During addition and subtraction we always choose the symbol of larger number, but in multiply we normally calculate minus plus sign. Okay, again second question, -16 plus 9. Firstly we have to solve bracket, then -6 plus 9, minus plus minus, then we have to subtract 16 minus 9, that is 7. Here 16 is greater and the symbol of 16 is negative, therefore answer will be -7. These are solutions. Okay, similarly you can solve all these questions. Here third question, -7 plus -23, then -7 plus -23, minus plus, then that will be -30. Okay, similarly we can solve. Now question number 2, find the sum of. It means we have to find out sum. So firstly know a step. Here 153, then write plus, then give bracket and write 302.
Okay, after that 153, we solve bracket plus minus minus 302. Now we subtract and we will get answer. Here answer will be minus 149 because we have negative sign, because 302 is greater than 153, and I have already told that we always take symbol of larger number. Okay, similarly we can solve all these questions. Okay, now question number 3, find the additive inverse of given questions. What are additive inverse? In additive inverse we use symbol of plus minus in the opposite manner. For example, if you are given minus 83, then its additive inverse will be plus 83 plus. Okay, because we just oppose the sign. Here additive inverse of minus 83 will be minus 83, that will be plus 83, because minus minus plus. Additive inverse of 256, here sign is positive, therefore we change the sign and symbol will be negative, so answer will be minus 256. Additive inverse of 0, this is very important. 0 never be negative, 0 never be negative. Okay, so here given plus, but to find additive inverse we add here negative symbol, but I have already told that 0 cannot be negative, so here answer will be only 0. Okay, then additive inverse of minus 2001 will be what? Plus 2001. Additive inverse of minus 2001 is what? Plus 2001, because minus we have to change the symbol. Okay, now subtract 28 from minus 42. Firstly, no, 28 from minus 42. What we have to do? During subtract from minus 42, it means firstly we have to write minus 42. We have to write minus 42 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देन माइनस 21. अब हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस, देन ऐड कर देंगे 8 to 10, कैरी 1, 4 to 6 और 1 7, और यहाँ पर हम सिंबल किसका लेंगे? 42 का. 42 के पहले क्या है? माइनस, देन आंसर विल बी माइनस 70. आंसर विल बी व्हाट? माइनस 70. अगेन 37, सॉरी माइनस 36 फ्रॉम 42. हमने आपको बोला कि पहले हम फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को लिखते हैं. सब्ट्रैक्ट करते समय पहले हम फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को चूज करेंगे. ये हमारा नॉर्मल मेथड होता है. हियर माइनस 36 फ्रॉम 42, सो फर्स्टली राइट 42, then we have to subtract, then minus, and then minus 36. Our next step will be 42 minus minus plus 36. Now add answer 6 to 8 and 4 3 7, then 78 is answer. Okay, similarly we can solve all these questions. Now next, subtract the sum of minus 132 and 878 from 34. Listen, subtract the sum of, it means पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है. sum of 1032 and 871, and whatever we have get we have to subtract from given number. Okay, then firstly we find the sum of minus 1032 and 878. Okay, then sum of given number minus 1032 plus 878, minus plus minus, then we should subtract it. Here 154, and we take negative symbol because 1032 is greater, so minus 154. Now we have to subtract from 34, then from 34, it means पहले हम 34 को लिखेंगे, so minus 34 we have to subtract, then minus and minus 154, then minus 34 and minus minus plus, minus minus plus, then plus 154. अब फिर यहाँ पे minus 34 प्लस 154. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस 34 प्लस 154, माइनस प्लस माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बड़ा साइन किसका है? 154 का. सो यहाँ पे हम पॉजिटिव को ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप कि आप समझ पा रहे हो. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट माइनस 134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड minus 87. Subtract, listen, subtract minus 134 from the sum of 38 and minus 87. It means firstly we have to find out the sum of 38 and minus 37. So here 87, sorry, sum of 38 plus minus 87 is minus 49. Now subtract it and we can get answer. Okay, similarly we can solve every questions. Now fill in the blanks. Okay, minus 13 plus 27, here brackets given, then plus minus 41, then
in the right side something given. Now listen, here two sides given. This is called LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड RHS यानी कि राइट हैंड साइड. अब यहाँ पर आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो डिजिट गिवन है, राइट साइड में एक डिजिट मिस है, उसी को आपको उसमें फिल करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में. तो यहाँ पे -13, 27, यहाँ पर ये 41 का सिंबल नहीं है, यहाँ पे ये नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम 41 को सिंपली लिख देंगे हियर -41, क्योंकि यहीं छूटा हुआ है देखो, तो यहाँ पे -41. और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स 3 टर्म में आपको देखो गिवन है, a + b - c इक्वल टू -a + b + c. दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मैथमेटिक्स. ओके, सिंपली क्वेश्चन नंबर 2, -26 -49 -83 इज इक्वल टू, यानी LHS हो गया. RHS में देखो मिसिंग क्या है, -83, सो हम -83 को यहाँ पे लिख देंगे और ये भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा. सिंपली एक हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम. जब दो टर्म की बात होगी, a + b = b + a. जैसे अगर मान लो आपको कोई लिखता है 4 + 6, तो इसको हम = 6 + 4 भी लिख सकते हैं. अगर a है और b है तो इधर b और इधर a हो गया. इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो यहाँ पे देखो आप 53 एंड -37 है, और इधर -37 है, तो बचा क्या हमारा 53. सो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या 53, और ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आंसर हो जाएगा. सिमिलरली वी कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन. ओके, नाउ सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू सिंप्लीफाई. We should follow here BODMAS rule. Okay, so firstly write -13 minus -27, then plus, and after that -25 and minus +40. Okay, so in second step here -13, then minus +27, then write it plus, then -25 minus +40. After that -13 + 27 is equal to 14, and -25 + 40 is equal to, that will be -15 here. Listen, that will be yes. Here 40 is greater, so +15. When we add 14 + 15, 29 is the answer. In BODMAS rule I have told B for bracket. ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं. किसका काम करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट का. सो इस क्वेश्चन में आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये -13 हमने नोट किया यहाँ पे, -13, देन माइनस, अरे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +27 हो गया. हमारा एक स्टेप ये सॉल्व हुआ. अगेन जो हम नेक्स्ट प्लस देंगे, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, -25, देन माइनस +40. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, -13 से जब हम 27 प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 14, और ये आएगा रिजल्ट 15. इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड 36 माइनस ब्रैकेट -64 एंड -64 -36 आर द इक्वल. यानी वी हैव टू सॉल्व दिस टर्म and this term. Firstly we have to solve that term and then this term. So 36 here, 36 and minus +64. Okay, again this term -64, sorry, firstly 36 + 64 and this term -64 + 36. Okay, sorry, -36. Then 36 + 34 is equal to 100, and here -64 and -36 will be -100. So 100 and -100 cannot be equal, so these are not equal. Okay, so these are not equal because 36 and -64 will be 36 + 64, and here -64 - 36, this will be +100 and this will be -100. This cannot be same. Okay, these are not equal, they are not equal. Again question number 10. If a is equal to -8, b is equal to -7, c is equal to 6, verify that a + b + c is equal to a + b + c. Here terms given. देखो यहाँ पर आपको 3 टर्म है, a b c.
हमें वेरीफाई करना है ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट से बाहर है प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. वी हैव टू वेरीफाई दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो फर्स्टली ए प्लस बी प्लस सी, हियर गिवन फर्स्टली ए प्लस बी प्लस सी. तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे. ए की वैल्यू कितना है -8, सो हमने यहाँ पे लिख दिया -8. बी का वैल्यू -7, सो हमने लिखा यहाँ -7 ब्रैकेट बंद. सी का वैल्यू 6, सो हमने यहाँ पे लिखा 6. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -8 -7 -15 प्लस 6 -9. एक टर्म सॉल्व. अगेन ए प्लस बी प्लस सी, ये देखो ए का वैल्यू -8 प्लस हमने प्लस दिया, देन ब्रैकेट में बी प्लस सी यानी -7 प्लस 6 हमने यहाँ पे डाला -7 प्लस 6 बी और सी की वैल्यू. इसको हमने सॉल्व किया तो -8 और -7 में से 6 जाएगा -1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -9. तो ये दोनों इक्वल आ गया. सो हमारा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इफ ए इज इक्वल टू -9 बी इज इक्वल टू -6 सो डैट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. ओके, इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू. ओके, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल टू. नाउ लिसन, a minus b, a is -9, a is what, -9 and b is what, -6, then -6. ये क्या हो जाएगा, -9 प्लस 6 इज इक्वल टू -3. एक स्टेप सॉल्व. सिमिलरली b माइनस ए, b इज वाट, -6, देन -6 माइनस ए का वैल्यू -9, देन -6 प्लस 9, ये क्या आ गया 3. यानी ये क्या है +3 और एक है -3. ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज 16. इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर. लिसन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16, 3. लेट वी हैव टू इंटीजर्स, one is a and one is b. Then in question given the sum of two integers, it means a plus b is equal to -16 given. If one of them is 53, let a is 53, then we have to find out b. a is 53, then b is equal to what? इसको सॉल्व करेंगे हम. देखो 53 प्लस b इज इक्वल टू -16. अब जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो b हो गया a हो गया -16 और इस 53 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 53. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस लेकिन ऐड होगा, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा. इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर. ओके, -69. देखो यहाँ पे लेट अदर इंटीजर बी ए, देन वी हैव 53 प्लस ए इक्वल टू -16. हमने इसको सॉल्व किया, ए इधर -16, ए प्लस में देन माइनस में, ये जाके 69 हो जाएगा. आपने लोअर क्लासेस में कैलकुलेशन किया होगा. नेक्स्ट, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65. इफ वन ऑफ देम इज -31, सेम कॉन्सेप्ट. द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65. लिसन, इफ वन इज ए एंड वन इज बी, देन सम इज गिवन व्हाट, 65. वन ऑफ देम इज -31, then -31 प्लस b इज इक्वल टू 65, देन b इज इक्वल टू व्हाट, 65. एंड माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 31. सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा. ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन है. नेक्स्ट 14. द डिफरेंस ऑफ एनी इंटीजर a एंड -6 इज 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. आपको दो इंटीजर दिए हुए हैं, एक इंटीजर a है और दूसरा आप द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 और दूसरा इंटीजर -6 है. उन दोनों का डिफरेंस 4 है. आप देखो, आपको पहला इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर क्या है आपका, -6 है. इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट कितना दिया है, 4 दिया. इनको सॉल्व कर लो, आपका इंटीजर निकल जाएगा. ये क्या हो जाएगा, a -+ इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 6 यानी -2. यहाँ पे सॉल्यूशन है, देखो यार -2. नाउ 15. राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स 0. ओके, हमें इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिनका सम 0 हो. देखो मैं सिंपल सा बात बताता हूँ, कोई भी दो नंबर आप ले लो, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, उनका सम हमेशा 0 होगा. देखो ये 0 आ गया. कोई भी दो सेम नंबर लो, एक को निगेटिव में रखो और एक को पॉजिटिव में रखो, उनका सम हमेशा 0 होगा. तो हम ऐसे बहुत इनफाइनाइट आंसर दे सकते हैं. यहाँ पर आप पहला देखो, कंसीडर द इंटीजर्स 8 and -8, देन वी हैव सम 0. अगेन अ निगेटिव इंटीजर, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स, इट मीन्स वी हैव टू ऐड. यहाँ पे सम निगेटिव आएगा. तो देखो आप सम कैसे करोगे, आप क्या करो, दोनों जैसे आपको सम करना है तो एक रख लो -6 और एक रख लो आपको +3. इनको जब हम सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -3, यानी ये निगेटिव आ गया. ठीक है, तो कहीं भी हमें ए निगेटिव इंटीजर, जब भी एक निगेटिव इंटीजर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, जो निगेटिव वाला नंबर होगा, निगेटिव साइन उसको बड़ा रखेंगे. ओके,
और प्लस करेंगे उसको, जो सेकेंड नंबर रखेंगे वो छोटा रखेंगे। जब सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट ओबियसली निगेटिव आ जाएगा। सेकेंड, एन इंटीजर स्मॉलर देन द बोथ इंटीजर, जिनके सम जो है, एक ऐसा इंटीजर आपको बताना है जो जिसका सम दोनों इंटीजर से छोटा हो जाए, जो हम सम करें। तो आप कभी भी दो निगेटिव चीज़ों को ऐड कर लो, ठीक है। ये देखो आपका आ जाएगा -6 -6 -12 आ गया। ये देखो -12 जो है इन दोनों से छोटा, इससे भी छोटा और इससे भी छोटा, ठीक है। तो कहीं भी आपको देखो -6 -6 ए -12, निगेटिव में जो बड़े नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं, तो -12 यहाँ पे जो है वो क्या है, छोटा है, -6 और -6 है। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, हमें क्या करना है, एक ऐसा इंटीजर जो किसी एक इंटीजर से छोटा हो और एक इंटीजर से क्या हो, इसमें बड़ा हो। देखो एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, जो सिर्फ एक ही से छोटा हो, हमें एडिशन निकालना है। आप इस कॉन्सेप्ट से बनाओ जैसे मैं आपको बताया हूँ। आपको क्या करना, एक ऐसा इंटीजर, जब दो इंटीजर को हम सम करें तो उसमें स्मॉलर आ जाए किसी एक से, ठीक है। तो इनको सॉल्व करो जैसे मैं बता रहा हूँ। एन इंटीजर आप ले लो, एक -6 ले लो, चलो ठीक है। एन इंटीजर स्मॉलर देन वन ऑफ द इंटीजर, जिनका सम, और यहाँ पे आप क्या ले लो, 9, देन -6 + 9, हियर रिजल्ट विल बी व्हाट, 3। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट निकल के आ गया क्या, 3। अब ये देखो, ये जो 3 जो है इससे स्मॉलर है। एन इंटीजर जब हम मतलब सम करें तो एक ऐसा है, क्योंकि क्वेश्चन देखो आपको दिया है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, जो सम, उनका जो सम आ रहा है वो छोटा होना चाहिए। तो हमने जो लिया था यहाँ पे -6 + 9, इनका सम कितना आया था हमारा 3, और ये क्या है, 1 से छोटा है। ऐसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट ट्रू और फॉल्स, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर में इधर भी नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर 0 से छोटा होते हैं, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कभी भी 0 नहीं सकता। स्मॉलेस्ट इंटीजर हमेशा निगेटिव नंबर होते हैं, इसलिए फॉल्स हो गया। -10 इज ग्रेटर देन -7, नो, बिकॉज -10 इज लेस देन -7, -7 इज ग्रेटर एंड -10 इज स्मॉलर, सो दिस इज फॉल्स। सेकेंड इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड, 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, यस। 0 जो है नंबर लाइन पे देखो हर निगेटिव इंटीजर के राइट साइड होता है। हम जैसे जैसे राइट साइड में आते हैं हमारा नंबर का वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे देखो -2 से बड़ा होगा -1, -1 से बड़ा होगा 0, 0 से बड़ा होगा 1, 1 से बड़ा होगा 2, एंड सो ऑन, ओके। नेक्स्ट, द सम ऑफ द टू निगेटिव इंटीजर इज अ निगेटिव इंटीजर, ऑफ कोर्स। जब भी हम दो निगेटिव इंटीजर को सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी हमेशा एक निगेटिव इंटीजर ही आएगा, क्योंकि हम सिंबल वहीं लेते हैं जो बड़े नंबर का हो, और जब दोनों निगेटिव है तो सिंबल हमेशा निगेटिव ही आना है। द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, नो, द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, लिसन, द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हियर विल बी 3, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। इस केस में तो हमारा पॉजिटिव आ गया, लेकिन अगर हम इसको ऐसे सम करते हैं कि -6 + 3, द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर, यहाँ पे एक निगेटिव इंटीजर हो गया, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, ये देखो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -3। तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट है आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।